Hello, folks. Hello, students. Welcome to Textbook MBA for our CAT and MITS preparation. This is in continuation of what we are doing for MHCET 2025. Today we are going to take PYQs from time, speed and distance, guys. बहुत important session है. Time, speed and distance से you can expect 2 to 3 questions in actual examination. At least is what I am saying. ज़्यादा भी हो सकते हैं. Okay. Chalo, let's start without wasting much of your time. Those who know, you know that these sessions are really very helpful and are very important and are very relevant from the examination point of view. Not only this, we are conducting regular classes for MHCET. Okay, the classes are conducted on Monday. Just a second, guys. ध्यान से देखो. The classes are conducted on 3 days a week, alternate days, MWF, Monday, Wednesday, and Friday. All the 3 sections. The timings are 5 p.m., 7 p.m. and 9 p.m. In addition to these classes, we are conducting marathons on Sundays. Okay. अभी तक हमने सब्जेक्ट वाइज मैराथन किया था, बट लास्ट के 2 संडेज में we'll be conducting the entire marathon for all the 3 sections. How amazing is this? On remaining days, we are conducting classes for CAT. If you are CAT aspirant, you can join these classes as well. Timings remains same. Sorted, beta. Chalo, let's start with the first question. All the questions that we'll be seeing are from PYQs of 2024-2023. So I had this collection of questions and these questions give you fair enough idea कि क्या आने वाला है exam में, because MAHCET is very well known to follow the trend. Let's start with the first question. There is a man standing on the top of a tower and sees a car coming towards the tower. It takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree. देखो कुछ ऐसा है. There is this car यहाँ पर. Let's say tower is AB. कार यहाँ पर. So this is angle of depression. ये 30 degree था और 30 से 60 में change हो गया when car would be here. ऐसा है. एक अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. राइट देखो. Let's draw this nicely. This is my tower. Car is here. Top of the tower. Okay, so this angle is angle of depression. ये जो angle है छोटा वाला, that is angle of depression. And now car moves towards the tower and hence the angle of depression changes. This is angle of depression initially 30 degree. तो ये भी 30 हो जाएगा बेटा. Let's name the tower as A and B, AB. Okay. Let this be C and finally car is at D and still moving towards the tower. Very good. Okay, this angle is 60. So by alternate angle, ये भी हो जाएगा 60. Great. अच्छा, it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 to 60. मतलब कार को C से D तक आने में 20 minutes लग गए. तो D से B जाने में कितना मिनट लगेगा? This is asked. Now we know that distance, the time is in the proportion with the distance. So I can write CD upon DB is time taken to cover CD upon time taken to cover DB. और कहीं ना कहीं आपको ये time taken to cover DB निकालना है. What is given? Time taken to cover CD given है. So this can be written as CD upon DB is equal to, this is 20 upon time taken to cover DB. This needs to be found out. Now I am interested in CD and DB. तो DB तो calculate हो जाएगा sir by using this triangle. Okay, by using this triangle. Let's do that. पहले DB को sort out कर लेते हैं. Sir, in triangle ADB, sir, I can proudly write tan 60 is equal to AB upon DB, perpendicular upon base. So this is AB upon DB. So DB would be how much, sir?
dB would be AB by tan 60. Tan 60 is root 3. So this is nothing but AB root 3 upon 3. आपने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, हमें नहीं पसंद है, हटा दो। सो डीबी मिल गया आपको एबी के टर्म्स में, वेरी गुड। अब अगर मुझे सीडी चाहिए ना, तो सीडी निकालने का एक तरीका क्या है, सीबी निकाल लो, जो कि इजी है अगेन, और सीबी में से डीबी को माइनस कर लो। तो सीबी निकालेंगे बेटा। सीबी निकालने के लिए वी नीड टू रेफर द बिगर ट्राइंगल, ट्राइंगल एसीबी। अब ट्राइंगल एसीबी में tan 30 की वैल्यू क्या है गोलू? सर दिस tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस tan 30 is AB upon CB. Tan 30 all of us know is 1 by root 3 is equal to AB is AB, okay, upon CB. CB chalo, very good. तो what is CB? CB is AB root 3. सर आप आराम क्यों करने लग गए थे? CB मिल गया आपको। So I have CB, sorry, I have CB, I have DB, I have CB, I have DB. I am interested in CD. I am interested in CD, right? Because I need CD over here. मेरे पास DB भी है। CD कैसे निकलेगा सर? CD निकलेगा CB minus DB. Okay, I'll take this space. CD निकलेगा CB minus DB. ओके आप माइनस करोगे, CB है AB root 3 and that is AB root 3 by 3. Put these values and when you will subtract ना, तो 3AB root 3 minus AB root 3, 2AB root 3 upon 3 आएगा, ठीक है। When you put in these values, this and that, you will get 2AB root 3 upon 3. Very good. Now let's put everything in our governing equation and get the solution. CD क्या है बेटा? 2AB root 3 upon 3. DB क्या है छोटू? DB is AB root 3 upon 3. Time taken to cover CD is 20 minutes given in the question, and this needs to be figured out. AB root 3 by 3, AB root 3 by 3 cancel out. Time DB is 10. इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा TDB is equal to 10 minutes. Correct answer to this question was option E. Correct answer to this question was option E, and this needs to be done. बहुत सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते थे, but there is no other way. There is no other way. चलो let's move to the next question. A train 110 meters long is running at a speed of 60 km per hour. Okay, there is this train 110 meters long running at the speed of 60 km per hour. In how many seconds it will pass a lady who is running at the speed of 6 km per hour? There is this lady who is running at 6 km per hour opposite to the direction of the train. It's mentioned in the question. Opposite to the direction of the train. कितना टाइम लगेगा ट्रेन को इसको क्रॉस करने में? PYQ 2024. वेरी गुड। चलो यू नीड टू फिगर आउट द टाइम। टाइम कैसे निकलता है छोटू? सर टाइम का हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाउ मच वुड बी द डिस्टेंस? सर यहां पर जो डिस्टेंस है ना, इज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, जो भी है, राइट। लेडी का लेंथ हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेन। Okay, so distance of train is 110 plus distance of length of lady is 0. Speed, they are in opposite direction, 60 and 6 opposite direction. Opposite direction matlab it will get added. So this is 60 plus 6, but इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? बोलो यस सर, यस सर।
Because length is in meter, answer is expected in seconds. Chalo, we need to solve this. 110 into 18 upon 66 into 5. करते हैं. 11 से गया ये 6 बार में, 11 से गया ये 10 बार में, ये गया 3 बार में, 5 से गया ये 2 बार में, 3 2 6 seconds. 3 2 6 seconds was the answer to this question. 6 seconds was the answer to this question. Chalo beta, next question. Two trains are moving in opposite directions. Two trains are moving in opposite direction at 60 km per hour and 90 km per hour. These are the two trains moving at the speed of 60 km per hour and 90 km per hour. And they are moving in opposite direction, means they are moving towards each other. The lengths are 101.1 kilometers, so 1100 meters, क्योंकि answer is expected in seconds. And length of the second train is 900 meters. 0.9 kilometers is nothing but 900 meters. We are expecting the time when slower train crosses the faster train. ये बस bluff किया आपके साथ. जितने देर में स्लोअर ट्रेन फास्टर को क्रॉस करेगी उतनी ही देर में फास्टर भी स्लोअर को क्रॉस करेगी. तो मैं बस खेला है आपके साथ. दैट्स इट. उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. लेट्स सॉल्व फॉर टाइम. Again, the formula that we used in the last question, distance upon speed. Distance would be the length of both of the trains, 1100 plus 900. यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा length, right? And speed क्या हो जाएगा बेटा? Since they are moving in opposite direction, add कर देंगे. But like last question, we need to convert it into meter per seconds. Do that. Up 2000 into 18 upon 150 into 5. We need to solve this. करते हैं solve. आ जाओ. इससे ये गया और 3 से ये गया 6 times में, ये गया 5 times में. 5 5s are 25, 8s are 8 6 are 48 seconds. Is the right answer to the question. 48 seconds was the right answer to the question. Sorted. Next question beta. There is a car of length 4 meter overtakes a trailer truck of length 20 meter. Okay, मतलब ये मेरा कार है of length 4 meter. Okay, overtakes a truck of length 20 meter. This is my car and this is my truck. What do we mean by word overtake? Overtake का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा कुछ. They are moving in the same direction. तभी तो कार overtake करेगा ट्रक को, right? Okay. The car की स्पीड निकालनी है. Let's say कार की स्पीड is x मीटर पर सेकेंड और ट्रक की स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर is nothing but 10 meter per second, right? Okay. And the car overtakes the truck in 10 seconds. Speed निकालनी है. हमारा standard formula. Again, time is what? So time is distance upon speed. Distance क्या लेंगे बेटा? First point से last point तक. Okay, time taken is 10 seconds given है. Distance हो जाएगा 4 plus 20. Speed हो जाएगा x minus 10 because they are moving in the same direction. ऐसे केस में speed cancel out हो जाता है. Solve this. This is 10x minus 100 is equal to 24. So x is equal to 124 by 10, 12.4 meter per second. Option D was the right answer to this question. Sorted. Very good. Next question. Due to some technical problem,
in the machine of his motorbike, Arojit had to decrease the speed to 75% of the normal speed. बाइक में आ गई प्रॉब्लम, एज अ रिजल्ट स्पीड करना पड़ा कम, और अगर स्पीड कम करोगे तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा, आपको टाइम लगेगा ज्यादा. सो व्हाट इज गिवन? ही वाज लेट फॉर वर्क बाय 2 hours. वेरी गुड. What is the normal time taken by him to reach his work at normal speed? Let us say उसका normal speed S1 होता है और उसको normal time T1 लगता है. उसका normal speed S1 होता है और उसको normal time T1 लगता है. अब S2 क्या हो गया एक दिन? सर उसका स्पीड जो है ना रिड्यूस हो गया 25% से, मतलब 75% ऑफ द नॉर्मल स्पीड, मतलब 3/4 ऑफ S1. 75% क्या होता है? 3/4 होता है ना. ऐसे में उसको टाइम ज्यादा लग गया. कितना लग गया सर? जितना रोज लगता था जो कि T1 है उससे 2 घंटा ज्यादा लग गया. वेरी गुड. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ स्पीड एंड टाइम. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम? सर हमें पता है, हमने सीखा है आपके क्लासेस में दैट S1 by S2 इज T2 by T1. इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्पीड और टाइम में. स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? तो S1 by S2, नाउ पुट इन द वैल्यूज. S1 by 3/4 S1, T2 इज T1 plus 2 अपॉन T1. आपको T1 के लिए सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व सर, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में. S1 से S1 कैंसिल आउट, 4/3 इज इक्वल टू T1 plus 2 अपॉन T1. तो 4T1 इज इक्वल टू 3T1 plus 6. T1 इज इक्वल टू 6. टाइम नॉर्मल क्या लगता है उसको? 6 hours. आंसर किस में गिवन है? मिनट्स में. तो 6 hours इज एज गुड एज 360 minutes. यस सर, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गोलू. A deer and a tiger, they are joyfully playing with each other. Okay, the deer notices that it is 40 steps away from the tiger. Okay, so यहां पर है टाइगर, ये है टाइगर और ये है डियर. ठीक है. and deer notices that tiger is 40 steps away. 40 steps of deer ना, 40 steps of deer, तो हम 40D लिखते हैं. आ जाओ, इसको पूरा लिख देते हैं डियर और इसको लिख देते हैं टाइगर. तो टाइगर डियर से कितना दूर है? 40 स्टेप्स ऑफ डियर, राइट? 40, क्योंकि डियर ने ऑब्जर्व किया है, राइट? 40 स्टेप्स ऑफ डियर. वेरी गुड. एंड द डियर स्टार्ट्स रनिंग towards the tiger. At the same time, tiger starts running away from the deer. डियर टाइगर की तरफ भागने लगा और टाइगर ऑपोजिट में भागने लगा. वेरी गुड. इन व्हाट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, जहां टाइगर डियर से भाग रहा है. बोथ रन इन द स्ट्रेट लाइन. नाउ फॉर एवरी 5 स्टेप्स ऑफ डियर, टाइगर टेक्स 6 स्टेप्स. ठीक है. तो 5 स्टेप्स ऑफ डियर, 5 steps of deer, tiger is taking 6 steps. 6, इनकी स्पीड क्या है? इनकी डियर की स्पीड है, डियर की स्पीड है 5 steps of डियर और इसकी स्पीड है 6 steps of टाइगर. ओके. However, deer takes only 2 steps to cover the distance that tiger covers in 3 steps. डियर 2 स्टेप में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस टाइगर 3 स्टेप में कर रहा है. वेरी गुड. मतलब कहीं ना कहीं टाइगर का 3 स्टेप डियर के 2 स्टेप के बराबर है. कहीं ना कहीं टाइगर का 3 स्टेप डियर के 2 स्टेप के बराबर है. तो टाइगर का 6 स्टेप सर डियर के 4 स्टेप के बराबर है. यस और नो? टाइगर का 6 स्टेप
डियर के 4 स्टेप के बराबर है या ना? सर टाइगर का 3 स्टेप डियर के 2 स्टेप के बराबर है, तो टाइगर का 6 स्टेप, टाइगर का 6 स्टेप डियर के 4 स्टेप के बराबर होगा। यस और नो, खत्म कहानी। मुझे सेम यूनिट में चाहिए था, ये भी डियर के यूनिट में है, डिस्टेंस भी डियर के यूनिट में है, और टाइगर का स्पीड भी डियर के यूनिट में है। अब निकालना क्या है, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल द डियर कैच द टाइगर। अब ध्यान देखो, अब ध्यान दो, डियर जब 5 स्टेप चलता है तो टाइगर 4 स्टेप। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली इन द टर्म्स ऑफ डियर, वी आर टॉकिंग ओनली इन द टर्म्स ऑफ डियर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइगर की स्पीड भी डियर के यूनिट में है। तो जब डियर 5 स्टेप चलता है तो टाइगर 4 स्टेप चलता है, राइट। मतलब डियर 5 स्टेप में 1 स्टेप का गैप कवर कर रहा है। ओके, 5 स्टेप में डियर 1 स्टेप का गैप कवर कर रहा है, 1 स्टेप का गैप कवर कर रहा है, राइट। तो गैप 40 स्टेप का है। गैप कितना है? 40 स्टेप्स का गैप है। 1 स्टेप का गैप कवर करने के लिए 5 स्टेप चल रहा है डियर, तो 40 स्टेप का गैप कवर करने के लिए, गैप अगर 40 टाइम्स है तो डियर को भी 40 टाइम्स चलना पड़ेगा, डियर को 200 स्टेप्स जाना पड़ेगा। बोलो यस सर, एंड दिस 200 वाज योर आंसर, दिस 200 वाज योर आंसर। सॉर्टेड, वेरी वेल सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, होली का माहौल है और हम ऑफर ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। So guys, we are celebrating Rang Utsav by giving huge discount on your Plus subscription, which comes at 9,999 now in the limited period. 16 तारीख तक ये ऑफर है, टुडे इज 13, हालांकि 14 से शुरू हो रहा है ऑफर, 14, 15 और 16 को है, आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। एंड बट यू नीड टू अप्लाई द कोड कोर MBA। ओके, ह्यूज डिस्काउंट है, यू कैन चेक द डिस्काउंट। प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 14,999 में। ओके, यू नीड टू अप्लाई द कोड कोर MBA अगेन। एंड MHCET का जो क्रैश कोर्स है जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, वो भी मिल जाएगा आपको 14,999 में, सॉरी 1499 में, बट यू नीड टू अप्लाई द कोड कोर MBA। सॉर्टेड, आगे बढ़ते। अच्छा, इनके लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन है, इंक्वायरी फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फिल इट आउट, इट विल टेक यू 30 seconds and our team of expert will connect with you and clarify all your doubts। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, let's move to the next question। So we have a 270-meter long train running at the speed of 120 km/h crosses another train in opposite direction at 80 km/h in 9 seconds। बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। अगेन मुझे 2 ट्रेन्स गिवन है सर, पहली ट्रेन गिवन है, दूसरी ट्रेन गिवन है। पहली ट्रेन को हम A बोल देते हैं, दूसरी को B बोल देते हैं। पहले का लेंथ है 270 सर, दूसरे का लेंथ पता नहीं, वो फिगर आउट करना है, उसको X बोल दो सर। पहले वाले का स्पीड 120 km/h है सर, वेरी गुड। एंड दूसरे वाले का स्पीड 80 km/h है सर, एंड बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Okay, it's mentioned in the question, they are moving in opposite direction. Awesome. And they are crossing each other in 9 seconds. Mathematics का रूल है, A plus B is equal to C। A B दे दो, C पूछ दो, या AC दे दो, B पूछ दो, या BC दे दो, A पूछ दो। मैथमेटिक्स इज, दिस इज मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको टाइम दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन B पूछा है, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खत्म। टाइम गिवन है 9 seconds, 9 ले लो, डिस्टेंस 270 plus x। We have been doing this for some time now। फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का सारा डिस्टेंस 270 plus x अपॉन स्पीड, स्पीड इज 120 plus 80, but we need to convert it into meter per seconds। yes sir, solve for x। आ जाओ करते हैं सर।
सर 9 इज इक्वल टू 270 प्लस x इंटू 18 बाई 200 इंटू 5। 9 से गया 2 बार में, 2 से गया ये 100 बार में। 500 इज इक्वल टू 270 प्लस x इज इक्वल टू 230। x मिल गया आपको 230, x मिल गया आपको 230। खत्म कहानी, खत्म कहानी। Very good. Let's move to the next question, sir. A wheel makes 1000 revolutions. PYQ 2024. A wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. Very good. What is the radius of the wheel? What is the radius of the wheel? देखो ये wheel है, ठीक है, wheel है ना? Very good, sir. ठीक है, ये wheel है और इसका रेडियस निकालना है। अच्छा, एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील? जो सरकमफेरेंस है। सो एक राउंड में द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज 2 पाई इंटू आर। ओके, 1000 रिवॉल्यूशंस के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो एंड द टोटल डिस्टेंस इज 88 किलोमीटर्स। सो 88 into 1000, yes or no? 1 kilometer is 1000 meters, तो 88 kilometers is 88,000 meters। जस्ट इसको सॉल्व करना है। 3 0 से 3 0 चला गया, 2 24 44 2 टाइम्स में। सो रेडियस इज 7 into 2 14 meters। 14 meters। ऑप्शन ए was a pretty easy question, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two men and they are running a 4 kilometer race on a circular shaped course of 1.4 kilometer। ठीक है, अब बताना मैंने ये सर्कल कैसा बनाया, कैसा परफेक्ट सर्कल है ना? सर चीटिंग करी, चीटिंग क्या चीटिंग करी है देख लो। ओके, तो they are this is A and this is B। They are running the race and the length of the track is 1/4 kilometers, मतलब 250 meters। ओके, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:4। स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इज इन द रेशियो 5/4। ठीक है, तो जीतेगा कौन? ए जीतेगा रेस। अच्छा, 4 किलोमीटर का रेस है, 4 किलोमीटर का रेस है, तो 4 किलोमीटर का रेस ए को जीतने के लिए कितने चक्कर मारने पड़ेंगे? सर 250 मीटर का एक चक्कर है, मतलब 1 किलोमीटर में 4 चक्कर, 4 किलोमीटर में 16 चक्कर। सो ए को 16 चक्कर मारना है बिकॉज ए इज गोइंग टू विन द रेस। अब इस 16 चक्कर में व्हाट दे हैव आस्क्ड, हाउ मेनी टाइम्स ए हैज क्रॉस्ड बी, बिकॉज ए इज द विनर। ए ने बी को कितनी बार क्रॉस किया? अब इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट कि एक बार अगर ए ने बी को ओवरटेक किया है, मतलब एक बार ए ने एक पूरा लैप एक्स्ट्रा भागा है। ए बी को कब ओवरटेक करेगा? जब ए पूरा का पूरा लैप एक बार एक्स्ट्रा भाग जाएगा, तब वो बी को ओवरलैप करेगा, राइट? तो आप बस ये देख लो कि ए ने बी से टोटल डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का रेशियो गिवन है, तो हम डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू 5/4 ओनली, क्योंकि बराबर होता है ना। डिस्टेंस और स्पीड का क्या रिलेशनशिप होता है? सेम होता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और जब ए ने 400 मीटर कवर किया, ए ने जब रेस फिनिश किया तो ए ने 400 मीटर कवर किया, राइट? तो फिर डी ने क्या डिस्टेंस कवर किया ये हम निकाल सकते हैं।
डी ने कवर किया 3200 मीटर। ओके जब ए ने 400 मीटर कवर 4000 मीटर कवर किया तो बी ने कवर किया 3200 मीटर। मतलब ए ने जब रेस फिनिश किया तो उसने बी से 800 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है, 800 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है, राइट। जब ए ने रेस फिनिश किया 400 मीटर 4000 मीटर भागा, 4 किलोमीटर भागा, तो बी भागा था 3.2 किलोमीटर। 800 मीटर एक्स्ट्रा वॉज रन बाई ए। और एक लैप में 250 मीटर होता है, मतलब उसने तीन लैप से भी ज्यादा एक्स्ट्रा भागा है, तो 3 बार ओवरटेक किया होगा, यस और नो। एक बार ओवरटेक करने के लिए 250 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना था, उसने 800 मीटर कवर किया है, मतलब 3 लैप एक्स्ट्रा, मतलब 3 बार ओवरटेक किया होगा, यस और नो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये बहुत डिफिकल्ट जाता है आपको। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो, राधे एंड श्याम स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट on a 28 kilometer long circular path and began to drive at 9 km per hour and 5 km per hour respectively if they are traveling in opposite direction। सर्किल बनाते हैं। अब तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट सर्किल बनाने की आदत हो गई है। ये सर्किल भी कितना गोल है, डोंट से आई एम चीटिंग, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज 28 किलोमीटर्स एंड एक तरफ राधे है जो इधर भाग रहा है एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, एंड श्याम है जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, श्याम है जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है एट 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कितनी देर में मिलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन। तो अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो एक कॉर्नर पे राधे है, दूसरे कॉर्नर, अब अगर आप इसको ब्रेक ओपन कर देते हो तो 28 किलोमीटर का रास्ता मिल जाएगा। राधे इधर भाग रहा है, श्याम इधर भाग रहा है, राधे भाग रहा है 9 के स्पीड से, श्याम भाग रहा है 5 के स्पीड से। कितनी देर में वो मिलेंगे सर? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक 28 है सर। स्पीड क्या, 9 + 5 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 2 आवर्स। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी किलोमीटर्स में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और आंसर भी आवर्स में एक्सपेक्टेड है। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus overtakes 2 persons walking on the road. Very good. The first one walks at 4.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 4.5 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.5 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करेंगे सर? इसको 45/10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कितना 225/180 5/4, so this is 1.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, द अदर वर्क्स एट 5.4 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 5.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 54/10 इंटू 5/18, 54 5 270 अपॉन 5 270 अपॉन 180, 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। The bus needs 8.4 seconds and 8.5 seconds to overtake them. Awesome. So बस पहले मैन को, अच्छा देखो ओवरटेक करता है, मतलब बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। स्पीड ऑफ द मैन इज 1.25 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट मैन की स्पीड, स्पीड ऑफ बस गिवन है क्या? ना, स्पीड ऑफ बस निकालनी है आपको। लेट्स से स्पीड ऑफ द बस इज x मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में ओवरटेक कर रहा है? 8.4 सेकेंड्स में। वेरी गुड। तो हम वहां इक्वेशन लगा सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, नहीं डिस्टेंस गिवन नहीं है। ओके, डिस्टेंस सेम है, हमें डिस्टेंस इक्वेट करना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते हैं ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट,
let the length of the train be L. Okay, so distance is equal to speed into time. L is equal to speed. Speed क्या हो जाएगा बेटा? X minus 1.25 and time would be 8.4. Yes or no? Yes sir. And there is this second case जहाँ पे same बस है with length L and speed x meter per second and next man is moving at the speed of 1.5 meter per second. यहाँ भी same हो जाएगा. So distance is equal to speed. Speed is how much? X minus 1.5 into time. Time is 8.5. Both of this needs to be equal क्योंकि both of them are equal to L. खत्म. आ जाओ. I can write x minus 1.25 into 8.4 is equal to x minus 1.5 into 8.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4x minus 10.5 is equal to 8.5x minus 850 plus 425 1275 तो 12.75. वेरी गुड. सो ये उधर जाएगा. 0.1x would be equal to 2.25. तो x would be equal to, अच्छा हटा देते क्या सब? हटा दो, हटा दो. 2.25 अपॉन 0.1. डेसिमल हटाओ नीचे से, ऊपर से हटाओ तो नीचे 2 zeros आएंगे. सो दिस इज 225/10, 22.5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ बस इज 22.5 मीटर पर सेकेंड. बट स्पीड एक्सपेक्टेड है किलोमीटर पर आवर में. कन्वर्ट कर लो. 22.5 इंटू 18/5 राइट बाई 10. 5 से गया ये 45 टाइम्स में, 5 से गया ये 9 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 2 से गया 9 टाइम्स में. 81. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Walking at the rate of 4 km per hour, a man covers certain distance in 2 hours and 45 minutes. Okay. Running at the speed of 16.5 km per hour, the man will cover the same distance. अच्छा, which distance? This distance. हम निकाल सकते हैं distance. फर्स्ट केस में डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना सर? डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. कहीं ना कहीं आपको स्पीड भी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर. 4 इंटू टाइम भी गिवन है 2 hours 45 minutes. तो 45 minutes इज व्हाट? 45 minutes इज 3/4 of an hour. सो 2 3/4 hours. अभी इसको करते हैं ब्रेक. 4 to 11/4. So distance covered is 11 kilometers. Distance covered is 11 kilometers. अब इसी डिस्टेंस को 16.5 किलोमीटर पर आवर से कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लग जाएगा सर? 11 अपॉन 16.5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज 2/3. 5.5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये. 2/3 of hours. Right? So 2/3 of hours is how much? 40 minutes. Yes or no? 2/3 of hours is the answer, which is nothing but 40 minutes. Got it? Very good. Okay. अच्छा देखो गाइस, चलो आ जाओ करते हैं इसको. देखो मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन करते हैं. आ जाओ. ट्रेन leaves station X at 5 AM and reaches station Y at 9 AM. एक ट्रेन है जो X से निकलती है कितने बजे? X से निकलती है 5 AM और Y पे पहुंच जाती है 9 AM. 4 घंटे लगते हैं उसको. कितना टाइम लगता है? 4 घंटा लगता है Y पहुंचने में. यहाँ पर Y है और Y से एक दूसरी ट्रेन है B जो निकलती है 7 AM को और पहुंचती है 10:30 को. 7 AM को यहां से निकली और पहुंच जाएगी 10:30 को. इसको लगते हैं 3.5 घंटे. ओके. एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर? ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये देखना है.
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक डिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच का। वो डिस्टेंस आपको अस्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और मुझे एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए, आई विल अस्यूम सच अ डिस्टेंस जो थोड़ा मेरे कैलकुलेशन में इजी हो जाए। सो मुझे दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ ए की जरूरत है, मुझे कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ बी की जरूरत है, और स्पीड ऑफ ए कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड ऑफ बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई टाइम ऑफ बी, और टाइम ऑफ बी कितना है 3.5 आवर्स, टाइम ऑफ ए कितना है 4 आवर्स। तो डिस्टेंस एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो 4 और 3.5 से इजीली डिविजिबल हो जाए, मतलब एलसीएम ऑफ 4 एंड 3.5 28। यस, तो हम लोग डिस्टेंस लेंगे 280 किलोमीटर्स। सर 28 बोल के 280 ले लिया, 28 का कोई भी मल्टीपल चलेगा, थोड़ा बड़ा लिया है सो दैट कैलकुलेशंस इजी रहे। चलो, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेशनरी प्लस रिलेटिव। रिलेटिव का कब हो गया, जब सेकेंड बॉडी मोशन में आया, कब 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे तक अकेला ए मूव कर रहा था, तो 7 बजे तक ए कहां पहुंच गया होगा, उसके लिए मुझे ए का स्पीड चाहिए। चलो, स्पीड ऑफ ए क्या है बेटा, स्पीड ऑफ ए है सर, ए 280 किलोमीटर कवर कर सकता है 4 घंटे में, ए 280 किलोमीटर कवर कर सकता है 4 घंटे में, तो स्पीड ऑफ ए 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा बी जो है 280 किलोमीटर कवर कर सकता है 3.5 आवर्स में, तो स्पीड ऑफ बी इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रेन 5 बजे शुरू हुई है वो 7 बजे कहां होगी, सर 7 बजे ए कहीं ना कहीं, सॉरी, ए कहीं ना कहीं यहां पर होगा। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, 2 घंटे में ए मस्ट हैव कवर्ड 70 इंटू 2, बिकॉज ए का स्पीड है 70, तो 2 घंटे में ए ने 140 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। 240 किलोमीटर का पूरा जर्नी है, इसका मतलब 280 किलोमीटर का पूरा जर्नी है, इसका मतलब 140 किलोमीटर बच गया अभी। एंड नाउ बी इज ऑल्सो इन मोशन and A is moving at 70, B is moving at 80, right? 7 बजे से, तो at what time they will meet A and B? सर डिस्टेंस उनके बीच में 140 है और उनकी रिलेटिव स्पीड है 70 प्लस 80 150, so they will meet in 14/15 hours. सर they will meet in 14/15 hours, बट आंसर जो है वो मिनट्स में है, टाइम जो है वो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग है, राइट? इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो 14/15 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 60, you need to multiply it by 60. This is 56 minutes. So they will meet after 56 minutes from 7. तो आंसर is 7:56 AM. They will meet at 7:56 AM. अब जिन्होंने रिलेटिव किया होगा उनको ये काफी इजीली समझा होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको ये डाउटफुल होगा। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो गाइस वी आर रनिंग क्लासेस फॉर CET एज वेल एज कैट स्क्रैच बैच के नाम से, उसमें जाकर देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आई हैव कवर्ड, ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगेन वॉच इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स। ओके, चलो आ जाओ। The last question, sir, this question, take this question as homework. I'll tell you the answer. Answer to this question was 8:3. ये आप homework में ले लो, practice, not homework but practice. This was a PYQ of 2023. So I believe इस आज के सेशन ने आपको बहुत हेल्प किया होगा, no doubt, in understanding the type of questions. देखो आज के सेशन का एजेंडा ये नहीं था आपको सिखाना, आज के सेशन का एजेंडा था अवेयरनेस फैलाना, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप कर रहे हो मेहनत, आपको पता ही नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? चलो गाइस, यू गाइस वर ग्रेट टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। पीछे के भी सेशंस देख लो, बहुत सारे सेशंस अपलोड कर दिए हैं मैंने,
नेक्स्ट सेशन आएगा ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, वो भी चेकआउट कर लेना गाइस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर चैनल रेगुलरली फॉर प्रीमियम कंटेंट बेटा।